سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور قرآنی آیات سے میں جو باتیں پیش کروں اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں شک، ڈاؤٹ، شبہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا چیلنج جس طریقے سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی ہے، اور اس کتاب کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ کل کسی میں تھی، نہ آج کسی میں ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس رہے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا وہی ہوگا، اور وہ 100% اس پر یقین رکھنا یہ تقاضۂ ایمان میں سے ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان کسی پیشن گوئی کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے دن اسکول نہیں بھیجتا۔ جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کل بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اخبار کے اندر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، اسکولیں بند ہو گئیں، آپ کو چھٹی مل گئی۔ کل کی خبر اگر کوئی ماہر موسمیات دے دے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن کے سارے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس کی بات کو تو سچی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے کہا کل بارش بے پناہ ہونے والی ہے تو بارش ہو بھی جائے، ایسا ضروری نہیں۔ لیکن میرے مولا کی بات پر اتنا یقین مسلمان کو ہونا چاہیے جتنا مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین کے سلسلے میں کمزور نظر آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بہت ساری شان، ان شانوں میں سے ایک شان رزق دینا بھی ہے۔ روزی کا رزاق کون ہے؟ بولیے، کون روزی دیتا ہے؟ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ تھوڑی سی اس کی شان میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں رزق سے متعلق، تاکہ اپنے رب سے تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور شان رزاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بولیے رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مالک کے بھی اور معنی پالنے والے کے بھی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے پالنا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کھلا کر پالتا ہے، پلا کر پالتا ہے نا؟ تو اب اللہ عز و جل ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، تو اب پھر اللہ عز و جل خود دوسرے مقام پر اپنی شان بیان کرتا ہے کہ سارے بندوں تم اچھی طریقے سے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب میں سب کا پالنے والا ہوں، دو چار لوگوں کا نہیں، سارے عالم کا جب میں پالنے والا ہوں تو میری شان یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसके लिए हैं आसमान और जमीन की कुंजियां, यानी आसमान और जमीन के अंदर जितने खजाने हैं, तो चूंकि अल्लाह पालने वाला है तो इन खजानों की कुंजियां भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और फिर किस तरीके से उसका इजहार फरमा रहा, याद रखें कुरान का एक अंदाज है, जब जब अल्लाह ने कहीं कोई दावा किया अपनी किताब के अंदर अपनी शान के मुतालिक, तो फौरन दलील भी पेश फरमाई। तो जब अल्लाह के दस्ते कुदरत में जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां मौजूद हैं, तो उसकी दलील अगर तुम जानना चाहते हो तो दलील यह है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, वो जिसके लिए चाहता है रोजी ज्यादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, जिसे चाहता है ज्यादा अता कर देता है और जिसे चाहता है तंग कर देता है उसकी रोजी को। और फिर वो जानता है कि जिसको मैं ज्यादा दूंगा तो वो क्या करेगा और जिसको कम दूंगा तो वो क्या करेगा। इसी की दलील अल्लाह ने आगे बयान फरमाई, इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सवाल पूरी दुनिया के मुसलमान के जहन के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, अकीदे की पुख्तगी और ईमान पर साबित कदमी के लिए इस बात को जहन के अंदर रखना बेपना जरूरी है। और जो बात इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान के जहनों में गर्दिश कर रही, वो बात कौन सी है? यार हम कलेमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन माल के एतबार से तो हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन काफिरों को देखो, मुशरिकीन को देखो, यहूद और नसारा को देखो, उनके पास कितना माल है। जब हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, तो फिर हम फाके में जिंदगी क्यों गुजारते हैं, तंगदस्ती में जिंदगी क्यों गुजारते हैं, हमारे पास माल की फरावानी क्यों नहीं। और बहुत सारे दुनियादार लोग इस तरीके की बात भी कहते हुए मुसलमान दिखाई देते हैं, आप इतनी नमाज पढ़ते हो लेकिन आपकी हालत देखो। और माद अल्लाह कहते हैं यार अपने तो इन बस चलती है अपनी जिंदगी, लेकिन देखो सब कुछ है हमारे पास। आप हलाल और हराम का ख्याल करते हो लेकिन आपके पास ये प्रॉब्लम है, हम तो सब कुछ जो मिला लेकिन हमारी हालत देखो। बीमारियां आपके घर पर, तंगदस्ती आपके यहां पर, परेशानियां आपके यहां, हमारे यहां कुछ भी नहीं। तो लाशऊरी तौर पर आदमी का कदम फिसल जाता है और गैरों को मालदार देखकर आदमी सोचता है कि वो कितने अच्छे हैं, कितने सुकून में हैं, और हमारी हालत ये। इसका जवाब कुरान ने दिया है, इसको समझो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फरिहु बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरह इल्ला मता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है, और काफिर दुनिया की जिंदगी पर इतरा गए। यानी जिसको दुनिया बहुत ज्यादा दी गई वो दुनिया की जिंदगी पर इतरा गए, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास कोई कमी नहीं। तो जिनको दुनिया की मता दे दी गई, दुनिया की चीजें दे दी गई, वो उसमें इतरा गए, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये। अब कुरान उन दुनिया की चीजों के बारे में फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मता। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल नहीं मगर कुछ दिन बरत लेना। यानी ये दुनिया की जिंदगी में जो चीज तुम्हें मिली है, यानी काफिरों को दुनिया में बहुत सारी चीजें मिल गई, लेकिन आखिरत में जीरो, आखिरत में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोमिन अगर दुनिया में तंगदस्त है तो आखिरत में उसे जन्नत अल्लाह अता फरमा देगा। तो आखिरत में सबसे अहम चीज जहां परमानेंट रहना है
وہ परमानेंट वाली जगह जहां पर अल्लाह अज़्ज़ वजल क्या अता फरमाएगा? जन्नत तो अता फरमाएगा। अब एक बात अर्ज करूंगा आयत की रोशनी में, तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप दुनिया में जो चीज चाहते हैं वो आपको शायद न मिले, है ना? आप चाहते बंगलो हो, गाड़ी हो, नहीं मिलती। लेकिन अगर दुनिया में आपने ईमान पर साबित कदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और जितना अल्लाह ने चाहा आपको रिस्क अता किया, उस पर आप खुश रहे, इसलिए कि आपको पालने वाला, हमको पालने वाला अल्लाह है और वो जानता है कि कितना किसको देना चाहिए, और उससे ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा है ही नहीं। वो रहमानुर रहीम है, वो अपने बंदों का भला चाहता है, अपने बंदों से प्यार करता है, और वो सबका पालने वाला है। अल्लाह ने जितना दिया उस पर आप राजी रहे, हम राजी रहे, ईमान पर साबित कदम रहे, तो फिर मौला फरमाता है मेरे बंदे ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, अगर कोई बिलियनर भी है ना तो मर जाएगा तो सब यहीं रह जाएगा, कुछ लेकर वो जाने वाला नहीं है। लेकिन जहां हमेशा रहना है वहां क्या होगा? तो कुरान कहता है दुनिया में तेरी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई ना, अब आखिरत में तेरा मामला ये होगा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, तो जो चाहेगा आखिरत में तुझे अता कर दिया जाएगा। तो जहां मुसलमान परमानेंट रहने वाला है वहां जो चाहोगे अल्लाह अता फरमाएगा। तो ये दुनिया के इंसानों के पास, काफिरों के पास मालो दौलत की फरावानी देखकर घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। तो सवाल ये पैदा होता है जो मुसलमान दुनिया में माल वाले हैं तो क्या वो गलत है? नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। बात यहां पर कुफ्फार की चल रही है, वो अपनी दुनिया पर इतरा गए, लेकिन मोमिन मालदार दुनिया पर इतराता नहीं है। मोमिन मालदार तो दुनिया के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और इस दुनिया से आखिरत को संवारने की कोशिश करता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों के माल और जान को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो मोमिन के पास माल होता है तो वो हज भी करता है, वो ज़कात भी देता है, वो मस्जिदें भी बनाता है, वो गरीबों की मदद भी करता है। तो मालदार होना कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन वो माल को अय्याशी पर खर्च नहीं करता, गुनाहों पर खर्च नहीं करता, उस पर इतराता नहीं है, बल्कि उस माल के जरिए जन्नत हासिल करने की कोशिश करता है।